जो हमने प्रिपरेशन की थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो हमने किया था, प्रिपेयर्ड सॉइल की थी, उसमें जब हम सीड्स को डाल देते हैं वो हमारी कहलाती है सोविंग, यानी कि जब हम जैसे हमने बीज ज़मीन में डाल दिए। सोविंग की जो होती है सबसे पहली चीज़ होती है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सोविंग में सबसे फर्स्ट चीज़ जो की जाती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ सीड। व्हाट इज सिलेक्शन ऑफ सीड? इन दिस सिलेक्शन ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड बाय फार्मर्स विच गिव मोर प्रोडक्शन एंड मोर yield and which are resistant to many type of diseases. This type of seeds are used by farmers so that the growth of the plant, the growth of the crop will be good and it will provide more benefit to farmers. तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स में क्या किया जाता है कि सीड्स कई तरीके की होती हैं, कुछ होती हैं जो कुछ टाइम तक ही चलती है, लेकिन मेनली जो फार्मर्स होते हैं वो किस टाइप की सीड्स को प्रेफर करते हैं, जो भी उन्हें एक अच्छी उपजाऊ चीज़ देते हैं, यानी कि जितनी अच्छी सीड होगी उतनी ही अच्छी फसल होगी। तो ज़्यादा अच्छी फसल के लिए फार्मर्स कैसे सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, जो कि हर तरीके से अच्छी हो, जिसकी ग्रोथ अच्छी हो, जिसके प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो और जो आगे जाके फल जो हमें मिलते हैं, फ्रूट्स जो मिलते हैं, सीड्स या ग्रेन्स जो हमें मिलती है वो भी हमें अच्छी क्वालिटी की मिले। आफ्टर दिस मेथड ऑफ सोविंग also done in so many type of methods. First is broadcasting method. In this broadcasting method, what is done in ancient times, where when there was no such techniques like tractors or other modern techniques we are using in our today's agricultural fields. In ancient time there is no such type of things are there. Though what does people do? People throw seeds with the help of their hands. They just spread seeds with their hands. This is known as broadcasting. In this, people use their hands to throw seeds on the field so that it will grow slowly. In this, what is the disadvantage of this broadcasting? In this, some seeds grow on the proper amount, some seeds grow at one place, some seeds are thrown and it is a different, equal distance is not there and equal distribution is not there. So next thing is using traditional tool. After broadcasting, after spreading through heads, so after some time some techniques are coming slowly. In this technique, some techniques are traditional tools like funnel. Funnels are used heavy, or we already know what is funnel. Funnel is a triangular structure like that we use in our filtering oil, water. हम लोग अपने घर पे यूज़ करते हैं वाटर और फिर इनको यूज़ करने के लिए। तो ये जो फनल होती है इसको यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल टूल्स में, किस लिए कि सीड्स आर पुट over the triangular part of the funnel and then slowly it is connected to the other thing or a hub through the hole or through the some other plugging equipment, so that the slowly the seeds will itself get into the sand by covering it through their farmer cover it by the land. Slowly they move and this funnel spread the seeds slowly in unequal or equal distance. After that, using seed drills are used. It is like that the funnel, but what is done in this seed drills, funnel is attached to the new equipments which are like using of tractors or some machines used there. These are the seeding drills. Seeding drills is also, it is a tube like structure which is connected to the funnel. In this, the tractor and the machine used, the tractor moves on the field and this funnel slowly and this tube seeds are put on these tubes and then slowly the funnel put the seed onto on the ground. This seed, what does this seed drill? Seed drill helps in the uniform movement, uniform swelling of the seed. इसमें हमें क्या हो जाता है, सीड ड्रिल में हमें क्या फैसिलिटी मिल जाती है कि जब आप किसी भी मतलब किसमें क्या किया जाए कि एक ट्यूब होती है जिसको एक फनल से कनेक्ट किया जाता है। ये जो ट्यूब और फनल होती है या मशीन्स जो यूज़ की जाती है, इनमें क्या होता है कि सीड्स को पहले पुट कर दिया जाता है उनके अंदर, और जैसे जैसे हमारी जो मशीन है, जैसे ट्रैक्टर है या कोई भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, उसको जिस तरीके से सीड फील्ड पे मूव करवाया जाता है, तो ये जो सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो धीरे धीरे क्या करती हैं, सीड में, सॉइल में चली जाती हैं और धीरे धीरे वहाँ पे जाके हो जाती है। इसमें हमें ये चीज़ मिलती है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इक्वल डिस्टेंस पे ही जो सीड है वो गिरती जाती है, इक्वल डिस्टेंस पे ही वो उनको गिराया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि समटाइम वी हैव टू ग्रो सम प्लांट्स ओवर आवर नर्सरीज एंड देन वी take this plant out from there and then grow on their agricultural field, like the plants of chilies, paddies, tomato. This type of plant, this type of cultivation is done by the process of transplantation. आप लोगों ने देखा होगा कि जब पैडी ग्रो की जाती है, पैडी मीन्स राइस, जब राइस को ग्रो किया जाता है तो पहले राइस को एक छोटे से फील्ड में ग्रो किया जाता है, वहाँ पे उनकी सीड्स को पुट किया जाता है। जैसे ही वो सीड ग्रो हो जाती है स्मॉल लिटिल प्लांट में, देन दे pull out that plant and then after some time they sow that plant on the agriculture field. वो उन प्लांट को क्या करते हैं, जैसे ही वो थोड़ा से ग्रो हो जाते हैं, वो उनको वहाँ से फील्ड से निकाल के फिर जो उनकी एग्रीकल्चर फील्ड होती है वो वहाँ पे उसको जाके लगा देते हैं। तो इस टाइप की जो प्लांटेशन होती है उसे हम ट्रांसप्लांटेशन
कहते हैं। हमारा थर्ड मेथड जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में वो होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, आपने सुना होगा खाद जिसे बोलते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो होते हैं, ये खाद जो होता है ये एग्रीकल्चर फील्ड्स में सीड्स में डाला जाता है ताकि जो उनकी ग्रोथ है वो और ज़्यादा अच्छे से हो, उनको हर तरीके का जो नरिशमेंट उनको चाहिए वो सारा नरिशमेंट उनको मिले, न्यूट्रिएंट्स उनको प्रॉपर मिले। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है? मैन्योर जो होता है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। किस तरीके से बनाया जाता है? मैन्योर जो होते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, इनको बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज किया जाता है और ये सब्सटेंस बनता है जिसको हम मैन्योर बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। बोथ आर यूज्ड फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इन दोनों को यूज़ किया जाता है ताकि जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, सेकंड हमारा पास आता है नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन। अब क्या होता है कि जैसे हमने बहुत सारे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर यूज, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज कर दिया तो न्यूट्रिशन एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गेट रिड्यूसेस। टू गेन दिस फर्टिलिटी वी हैव टू डू सम वर्क. What we have to do, farmers do crop rotation. For what? For again developing and for gaining again the nutrients of the soil, for making nutrients to increase the fertility of the soil. मैन्योर होने के बाद फर्टिलाइजर होने के बाद क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है कि जैसे ही अगर हमने एक्सेसिव अमाउंट में मैन्योर या फर्टिलाइजर यूज़ कर लिया है या फिर एक ही टाइप की क्रॉप कई टाइम तक ग्रो की गई है एक ही फील्ड पे, अगर एक ही साल मतलब हर साल एक ही टाइप की क्रॉप की तो जो न्यूट्रिशन क्वालिटी होती है सॉइल की वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप जब तक एक ही टाइम की क्रॉप ग्रो करते रहोगे तो धीरे धीरे एक टाइम में ऐसा आएगा कि वो क्रॉप की जो इल्ड है वो हमें अच्छी नहीं मिलती। तो ये इल्ड अच्छी लेने के लिए क्रॉप के लिए हमें क्या करना होगा, क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें कि हमें हर एक टाइम पीरियड बाद, एक साल बाद या 2 साल बाद हमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। आफ्टर दिस